چیز تو بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جرنیل ملک کو نہیں چلا سکتے، اس ملک کو جرنیل نہیں چلا سکتے۔ 78 سال کی سیاست کا یہ نچوڑ ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج تک ہم یہ سنتے رہے، ہر دن بات ہوتی ہے کہ فاطمہ جناح سے لے کر بھٹو، ولی خان، آج عمران خان، ہر سیاستدان غدار ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ اس عوام کے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اس عوام کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہماری عوام کے لیے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ان کو آپ نے بیرکس میں کس طرح واپس بھیجنا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ساری زندگی ہم نے پرامن جدوجہد کی۔ آج ہماری یہ بہن آپ کے لیے کام کرے، انسانی حقوق کے لیے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب 2000 میں ایک انجمن مظاہرین اکاڑا کی تحریک چلی تھی کہ جس میں بے گھر جو اکاڑا مظاہرین تھے اس کے اوپر فوجیوں نے ان کے ساتھ ایک لڑائی ڈالی، براہ راست وہ جدوجہد تھی، ان کے اوپر قتل کے مقدمے بنے۔ ہم ان ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ یہاں پہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے اندر، جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے۔ کون سا ایجنڈا ہے؟ کس کا ایجنڈا ہے کہ 75 سال میں ہم علیحدہ تو ہوئے لیکن آزادی کی جدوجہد ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے، ابھی آزادی کی جدوجہد ہم نے کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیے ان کا کیا قصور ہے، صرف یہ کہ جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو ادھر آواز خاموش کرا دی جاتی ہے۔ کے پی کے میں دہشت گردی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس عوام اور ان جمہوری قوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں؟ آج پھر آپ کی نظر ان کے منرل ریسورسز کے اندر ہے، آج آپ کی پھر نظر ان کے وسائل کے اوپر ہے۔ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ بیرونی ایجنڈے ہیں کہ آج آپ پھر سندھ کے اندر جائیں تو سندھ کا پانی 6 کنال کا منصوبہ کس کی زمینیں سے، اور پھر وہ جو سسٹم کے خلاف نفرت ہوتی ہے وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ اور ہم اس سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب بالکل ہم نے باہر نکلنا ہے اور مزاحمت سڑکوں پہ کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں نوجوان کو ایک پیغام دوں گی کہ آپ لوگ ایک سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو ادھر کے لیے خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ میں آپ کو اس کا جواب ابھی نہیں بتاؤں گی، آپ سب سوچئے گا۔ صرف نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہوں کہ کیوں آپ کے لیے کوئی پاپولر لیڈرشپ کو ادھر زندہ نہیں رہنے دیا جاتا؟ کیا قصور ہے عمران خان صاحب کا؟ صرف یہ کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ اس ملک میں اس وقت یہ نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ اتنے تو مجھے پتہ ہی بڑے کن ذہن ہیں، لیکن اتنے بھی کن ذہن نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 24 کروڑ کی آبادی کو آپ بغیر رول آف لا کے اور کانسٹیٹیوشنلزم کے نہیں چلا سکتے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ لانا نہیں چاہتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیوں یہ ملک میں آئین کی اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ اس وقت سب سے پہلے تو میں محمود خان اچکزئی صاحب، اسد کیسر صاحب اور باقی جو تمام اکابرین ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا آج اس ڈائیلاگ کا بھی، کہ پورے پاکستان سے انہوں نے جمہوری آوازوں کو اکٹھا کیا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو اس جبر کے نظام کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ان میں ہمارے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ساتھی، اس میں ہمارے میڈیا کے ساتھی، پولیٹیکل ساتھی، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ایک بڑا نام ہے، جنہوں نے جو وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ ہم بڑی دیر سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب ہوں، ان کی سیاسی جماعت کے ورکرز ہوں اور ان کے ساتھی ہوں، ان کی بہنیں ہوں، بہرنگ بلوچ ہو، ہمارا یہ جو بہادر کپل ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ہادی اور ایمان ہو، ادھر وہ کھڑے ہیں ہمارے جو میڈیا کے ساتھی۔ تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں ہیں جنہوں نے آپ کو انصاف دینا ہے؟ کیا جو اس لیے بٹھائی ہوئی ہیں؟ کیا ڈوگر کورٹ اس لیے لگائی تھی کہ وہ فیئر ٹرائل کرے گی؟ کیا ڈوگر کورٹ اس لیے بٹھائی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ایکسٹینشن ہے آپ کی جی ایس ٹی کا، یہ اس لیے بٹھایا تھا کہ یہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سے انصاف کی توقع کرنا بھی انصاف کی تذلیل ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیے، میں اگر ہم تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالیں، خاص طور پہ میں یہاں کے نوجوانوں سے کہوں گی کہ پاکستان آج سے 78 سال کے بعد جب ہم یہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، کاش ہم بیٹھے ہوتے کہ ایک جمہوری حکومت ہوتی،
काश हमारे ये दानिश्वर साथी उनको मशवरा दे रहे होते कि हुकूमत जो गवर्नेंस को हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये गलतियां आपके अंदर, इसको दुरुस्त करें, जदीद अदलिया के अंदर ये मसाइल हैं, हम उनको ठीक करें, सियासतदानों के पार्लियामेंट को ये कवानीन पास करने चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के हालात हैं, आज 78 साल के बाद हम लोग उस जगह पे आ बैठे हैं कि जहां पर ना तो वकील वकालत कर सकता है, न जज आजादी से फैसला दे सकता है, न हमारे मीडिया के दोस्त अपने कलम से लिख सकते हैं, न पार्लियामेंट कोई अपनी जमहूरियत की बात कर सकती है। आज पार्लियामेंट एक पोस्ट ऑफिस बन चुकी है कि जो मुसवदा उधर से आता है, आपने 26वीं 27वीं तरमीम की सूरत में देखा, आप पीका लॉज के जो कवानीन इस तरह के बने, दीगर कवानीन को देखें, जो मुसवदा इनको दिया जाता है, ये उस मुसवदे को पोस्ट ऑफिस की तरह उसको रबर स्टैंप करते हैं और अवाम के ऊपर ये इसको नाफिज कर देते हैं। तो हमें शर्मिंदगी है कि आज 78 साल के बाद हम उस जगह पे आके बैठे हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि ये जर्नैल मुल्क को नहीं चला सकते, इस मुल्क को जर्नैल नहीं चला सकते। 78 साल की सियासत का ये निचोड़ है। अब हमने करना क्या है? आज तक हम ये सुनते रहे, हर दिन बात होती है कि फातिमा जना से लेकर भुट्टो, वली खान, आज इमरान खान, हर सियासतदान गद्दार है। मैं कहती हूँ कि ये जो जर्नैल हैं, ये इस अवाम के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इस अवाम के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी अवाम के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इनको आपने बैरक्स में किस तरह वापस भेजना है। देखिए, हम लोग पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं, सारी जिंदगी हमने पुरअमन जदोजहद की। आज हमारी ये बहन आपके लिए काम कर रही है, इंसानी हकूक के लिए। मुझे वो दिन भी याद है जब 2000 में एक अंजुमन मुजाहिरीन उकाड़ा की तहरीक चली थी कि जिसमें बेघर जो उकाड़ा मुजाहिरीन थे उसके ऊपर फौजियों ने उनके साथ एक लड़ाई डाली, बराह रास्त वो जदोजहद थी, उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे बने। हम उन साथियों के साथ करते रहे, हम उनके साथ लड़ते रहे। यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल डिवाइड पैदा की जाती है पाकिस्तान के अंदर, जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है। कौन सा एजेंडा है, किसका एजेंडा है कि 75 साल में हम अलहदा तो हुए लेकिन आज़ादी की जद्दोजहद हम आज भी कर रहे हैं। अभी हम आज़ाद नहीं हुए, अभी आज़ादी की जद्दोजहद हमने करनी है और वो हम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में देखिए उनका क्या कसूर है, सिर्फ ये कि जो अपने हुकूक की बात करता है उसको उधर आवाज खामोश करा दी जाती है। केपीके में दहशतगर्दी किसकी वजह से है? ये इस अवाम और इन जमहूरी कुव्वतों की वजह से नहीं है, ये किसकी वजह से वहां पे लोग मर रहे हैं? आज फिर आपकी नजर उनके मिनरल रिसोर्सेज के अंदर है, आज आपकी फिर नजर उनके वसाइल के ऊपर है। किसका एजेंडा है? ये बैरूनी एजेंडे हैं कि आज आप फिर सिंध के अंदर जाएं तो सिंध का पानी 6 किनाल का मंसूबा किसकी जमीनें सैराब हुई थी? अगर जमीन आपने सैराब करनी है, अगर आपने किसानों के लिए कुछ करना है, आज आप पंजाब का हाल जाके देख लें, आपको कौन सा लगाव है आप अपने ज़राई मुल्क के साथ? आपको किसान के साथ कौन सा लगाव है? आज पंजाब का किसान रो रहा है। आज सीसीडी जो है एक नया अदारा, इन्होंने कत्लगाह एक नया कातिल अदारा बनाया जो लोगों को बराह रास्त गोलियां मार रहा है। तो ये सब कुछ आपने करके देख लिया, अब हमने क्या करना है? अब मसला ये है कि देखिए, हम फिर वही बात करेंगे, हम जमहूरी लोग हैं कि हमने जमहूरी जदोजहद करनी है। यहाँ पर अवाम के अंदर मायूसी फैलाई जाती है। हमारे नौजवान को कहा जाता है, जब हम बाहर निकलते हैं लाहौर बार के जो कराची बार को और उसके बाद लाहौर बार को भी मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ हर जुमेरात को हम जुलूस निकाल रहे हैं। वहाँ के सदर मुबशर रहमान साहब ने भी आना था, बल्कि उनका पैगाम है, अगर वो ना पहुँच सके। इसी तरह हमारे साथी राह बुलंदीर अली मदकूर साहब का ने भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ना पहुँच सके तो हमारी तरफ से मुकम्मल सॉलिडारिटी है और हम मुकम्मल आपके साथ खड़े हैं और हम ये जमहूरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों के अंदर मायूसी फैलाई जाती है नौजवानों के अंदर। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश करें। नौजवानों को कहूँगी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में किताब भी पढ़े कि एक तो तहरीकें चलती हैं, एक दिन में कोई तहरीक नहीं चलती, वो इसी तरह चलती है जैसे हम लोग चला रहे हैं। आप लोगों ने बात करनी होती है, आपने गुफ्तगू करनी होती है, आपने अपनी जदोजहद के बारे में लोगों को आगाह करना होता है, और फिर वो जो सिस्टम के खिलाफ नफरत होती है वो आपकी ताकत होती है। और हम उस सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं कि अब बिल्कुल हमने बाहर निकलना है और मुजामत सड़कों पर करनी है। लेकिन उसके साथ मैं नौजवान को एक पैगाम दूंगी कि आप लोग एक सवाल का जवाब तलाश करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पॉपुलर लीडरशिप होती है उसको इधर के लिए खतरा क्यों समझा जाता है? क्या वजह है? इसके ऊपर आपने तहकीक करनी है। मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं बताऊंगी,
आप सब सोचिएगा, सिर्फ नौजवानों को पैगाम दे रही हूँ कि क्यों आपके लिए कोई पॉपुलर लीडरशिप को इधर जिंदा नहीं रहने दिया जाता। क्या कसूर है इमरान खान साहब का? सिर्फ ये कि जो वो बातें कर रहे थे, ये इस मुल्क में इस वक्त ये नहीं है, सबको पता है कि इंसाफ होना चाहिए। इतने तो मुझे पता ही बड़े कुंज ज़हन है, लेकिन इतने भी कुंज ज़हन नहीं है कि इनको ये नहीं पता कि 24 करोड़ की आबादी को आप बगैर रूल ऑफ लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नहीं चला सकते। मसला सिर्फ ये है कि ये लाना नहीं चाहते। क्या वजह है? इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है कि क्यों ये मुल्क में आइन की और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। इस वक्त क्यों आप पे कारोबार नहीं चल रहे? इस वक्त सिर्फ फौजी फाउंडेशन क्यों चल रही है? इस वक्त सिर्फ फौजियों के जो 51 कारोबार जिनका जिक्र आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब में दिया, सिर्फ वो उस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, बाकी सबका कारोबार खसारे में है। तो इन सवालों के जवाब आपने तलाश करनी है। और आखिर में हमने करना क्या है? एक तो ये कि हमने ये अपनी जिस भी हालत में, जिस भी अंदाज में हम कर सकते हैं, हमें इस जदोजहद को जारी रखना है, एक बात। दूसरा ये कि आपने देखा कि लोग बाहर निकले, उनको सीधी गोलियां मारी गई। इमरान खान साहब के जो साथी थे, उनके जो खवातीन थी, बच्चे थे, उनको इस डी चौक में रियासत ने उनका कत्ल किया। 9 मई के मशकूक वाक़े के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की क्लिनजिंग की जा रही है। तो अब हमने ये करना है कि अगर हम अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी के तौर पे मैं एक तजवीज़ दूंगी कि एक ऐलान करें किसी तारीख पे कि सारा पाकिस्तान जो है वो घर बैठे, हम एहतजाज के तौर पे सड़कों, हम बिल्कुल कोई बंदा बाहर ना निकले और एहतजाज के तौर पर सड़कें खाली कर दें। उसके बाद एक अगला मरहला है कि जब फिर हम अपने प्रोटेस्ट के लिए वुकला भी कॉल दें, आप लोग भी कॉल दें, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम एक पुरअमन मार्च के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के हम ये कहें कि हम मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, आप अपनी बैरक्स के अंदर वापस चले जाएं। और ये इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं। आपको याद होगा यूथ दौर में जब तुलबा निकले थे ढाका और कराची की सड़कों पे, तो एक उन्होंने तरीका इख्तियार किया था कि उन्होंने नंगे पांव एहतजाजी मार्च किया था। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे एहतजाज करने के, लेकिन एक बात तो तय है कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट है, हमें पुरअमन जदोजहद और एहतजाज के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। और जब भी आप ऐलान करेंगे, हमारी ये बहन बैठी है, हमारी और साथी, हमारी वुकला खवातीन है, हमारी बहनें, हम आपको लीड करेंगे, हम आपके आगे खड़े होंगे और हम इस निज़ाम की जदोजहद में अपनी कौम के हकूक के लिए, जब तक आपके अंदर, मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आती, आपकी खवातीन आपको लीड करेंगी। बहुत शुक्रिया।